ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ 10th ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14.1 ਦੇ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਅਭਿਆਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ 14.2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡ। ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਗਰੁੱਪਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਲਕ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਅੰਕੜਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ 0। 0 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1। 1 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ? 1 ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 2। 2 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? 1 2 3। 3 ਵਾਰੀ 2 ਲਿਖੋ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 3। 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 3 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4। 4 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ? 4 ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5। 5 ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6। 6 ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, 1 ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, 3 ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ 2 ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ, 3 ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 4 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, 5 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 6 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 2 ਹੈ। ਮੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 4 ਹੈ, 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 5 ਹੈ, 30 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਮੋਡ, ਬਹੁਲਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ L ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਬਟਾ 2F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਮਾਈਨਸ F2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ H। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਲਕ ਬਰਾਬਰ L ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਨੂੰ ਮੈਂ F0 ਬੋਲੂੰਗਾ। F0 ਜਾਂ F0 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। L ਪਲੱਸ F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਬਟਾ 2F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਮਾਈਨਸ F2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ L, F1, F0, F2 ਤੇ H, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ L ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ, ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ
बहुलक वर्ग मॉडल क्लास। तो पहला मतलब देख लो, फिर सवाल समझाना। एल बहुलक वर्ग की हेठली सीमा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर तो एल लिया। सो बहुलक वर्ग की हेठली सीमा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर अगे है F1, F1 बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता, बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की अपनी बारंबारता, मॉडल क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी। फिर F0 बहुलक वर्ग तो ठीक पिछले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग तो ठीक पिछले वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर F2 का मतलब की है, बहुलक वर्ग तो ठीक अगले वर्ग की बारंबारता, F2 अगले वर्ग की बारंबारता, F0 पिछले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता। फिर ये H है, H वर्ग अंतराल का माप कि ਜਿਹੜੇ वर्ग अंतराल दिते हुए हैं उन्होंने फर्क किन्ने किन्ने का है वो H होएगा। तो इन्होंने सारे सवालों में फर्क इक्को जिहा होना चाहिए, ताकि असं इतने H की वैल्यू सेम ले सकते हैं। सो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल का माप साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये L होगी बहुलक वर्ग की हेठली सीमा, F1 F0 ते F2 इन्हां दे विच कन्फ्यूजन होंदी। सो देखो की है, 1 बहुलक वर्ग की अपनी, 0 वाली 1 तो पिछे की आंदा 0, ਇਹਦਾ मतलब F0 किहदी बारंबारता होएगी, बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता लेनी है। तो 1 तो अगे की आंदा 2, तो F2 वाली किहदी बारंबारता होनी, बहुलक वर्ग तो अगले वर्ग की बारंबारता। सो F1 बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता, F0 पिछले वर्ग की बारंबारता, F2 अगले वर्ग की बारंबारता। सो सब तो पहला तुहानूं इहदे विच सवालां 'च बहुलक वर्ग पता करना हुंदा, वो देखने तो बाद बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता नूं F1 लिखना, उस तो पिछले की बारंबारता F0 लिखना, उस तो अगले की बारंबारता F2 लिखना। तो L भी बहुलक वर्ग की हेठली सीमा, H जो वर्ग अंतराला का साइज होएगा, माप होएगा, किन्ने किन्ने का फर्क रखा होएगा, वो सानूं सवाल च पता लग जाता है। सो हुण आ सीगा फार्मूला, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद करके इत्थे करना गुणा H। ठीक है, तो हम सवाल करते हैं। फिर सवाल बड़े सिंपल है, सवाल बहुत सिंपल है, सवाल पता लग जाएगा कि यह चीज़ा जी इतने लिखी हुई हैं, जो सिंबल्स यूज किए हैं ये सिंबल्स किस तरह असीं सवाल के लैने। ठीक है, सो सवाल करते हैं हम। हाँ जी, देखो बेटा हम सो 14.2 का दूसरा सवाल करवा लगा। आ फार्मूला लिख दिता, मैं साइड उत्ते फार्मूला लिख दिता होया। हेठा दिते अंकड़े 225 बिजली उपकरणों के जीवन काल को दर्शाते हैं, बहुलक जीवन काल पता करो। वह स्टेटमेंट दी है, इधर जीवन काल लिखा हुआ, बिजली उपकरणों के जीवन काल लिखे हैं, तो इधर उन्होंने बारंबारता लिखी है। जिन्हों का जीवन काल 0 तो 20 घंटे है उन्होंने गिनती 10 है, 20 तो 40 घंटे वाले की गिनती 45 है, 40 तो 60 वाले की 52, 60 तो 80 घंटे चलने वाले की 61 है, 80 तो 100 तक 38 है, 100 तो 120 तक 29। तो आह स्टेटमेंट दी। ठीक है, सो बहुलक पता करने लिए असीं कोई नवी सारणी नहीं तैयार करनी होंगी, बस ये होंदा कि आ जिहड़ी सारणी तुहानूं इस फॉर्म च दित्ती होई ना उहनूं जरा के इस फॉर्म दे विच लिख। ठीक है, तो आ जिहड़ी सारणी है इसे नूं भी आपां इस तरह लिख दिता, जीवन काल पहला सीधा जीवन काल लिख दिता, फिर बारंबारता दूसरे कॉलम च लिख दिता। तो जीवन काल 0 तो 20 10, 20 तो 40 35, 40 तो 60 52, 60 तो 80 61, 80 तो 100 38, 100 तो 120 29। तो जिहड़ी सारणी इस फॉर्म दे विच सी उन्होंने इस फॉर्म के लिख दिता। इदा लिखने के थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, सो यदि जरूरत नहीं है तो आप बढ़े देने हैं। तो इन्होंने आंकड़े का आप बहुलक पता करना। तो जिस तरह तुम मध्यमान के एक सारणी अपने को तैयार करते थे, नवे कॉलम्स भी तैयार होंगे सी, तो ये बहुलक कोई कॉलम तुम नवा तैयार नहीं करना, तुम सिर्फ बहुलक वर्ग पहचानना सब तो पहला, उस तो बाद बहुलक वर्ग पहचानने तो बाद आ जिहड़ियां वैल्यूज़ ने L F1 F0 F2 ते H, ये वैल्यूज़ सारियां तुसीं लिखो। तो सब तो पहला असीं पहचानते हैं ये बहुलक वर्ग पहचान। तो पहला काम है सवाल इत्थों शुरू होंदा, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास इंग्लिश दे विच कहंदे नूं मॉडल क्लास। तो आ जिहड़े ग्रुप दिते ने, वर्ग दिते ने, वर्ग अंतराल दिते ने, आ वर्ग अंतराल ने सारे क्लास इंटरवल्स ने। इन्हां वर्ग अंतरालां दे विचों तुसीं ये देखना कि बहुलक वर्ग किहड़ा है।
ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 10 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 35 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 52, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 61, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 38, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 29। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਹੈ, ਇਹ 35 ਹੈ, ਇਹ 52 ਹੈ, ਇਹ 61 ਹੈ, ਇਹ 38 ਹੈ, ਇਹ 29 ਹੈ। तो सब तो ज़्यादा किहड़ी आंदी पई आ 61 आ रही। तो 61 बारंबारता सब तो ज़्यादा है। ये 61 किहड़े ग्रुप दे विच हैगी आ 60 तो 80 ग्रुप दे विच है। तो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच सब तो ज़्यादा बारंबारता है 60 तो 80। इट मीनस आ बहुलक वर्ग है, ये है बहुलक वर्ग, इहनूं तुसीं इहदा मार्क भी कर सकते। 60 तो 80 साडा बहुलक वर्ग है। इत्थे लिख देना बहुलक वर्ग 60 तो 80। ठीक है। तो बहुलक वर्ग आप पहचान लिया। मॉडल क्लास 62 780 है। तो जिस ग्रुप की बारंबारता सब तो ज़्यादा सी 61 सब तो ज़्यादा सी वो ग्रुप देखना। तो ये किहड़े ग्रुप दे विच आया 60 तो 80 ग्रुप दे विच आया। इस करके इहदा बहुलक वर्ग किहड़ा बनदा पिया 60 तो 80। हुण जिहड़ियां आ वैल्यूज़ ने L F1 F0 F2 ते H ये सारियां वैल्यूज़ लिखी है। इत्थे लिखना L फिर F1 फिर F0 F0 F2 ਤੇ H ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ। तो याद करो L ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। L ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ, ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ। तो ਆ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। L ਮੀਨਸ ਲੋਅਰ, ਲੋਅਰ ਮੀਨਸ ਹੇਠਲੀ। तो हेठली सीमा लेनी। तो बहुलक वर्ग की हेठली सीमा की है 60। इट मीन L की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है। तो L बहुलक वर्ग की हेठली सीमा से वो आ गया 60 आ गया। हुण आ रह गया ये मेन काम है F1 F0 F2। F1 के बारे चेते करो। F1 बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग तो अगले की बारंबारता। सो आ बहुलक वर्ग है अपना। तो बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता F1। तो F1 किहदे बराबर आनी है 61 दे। इत्थे तुसीं लिख देना ये F1 है। बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता F1, उस तो बाद F1 की वैल्यू इत्थे लिख दी 61। F0 बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता, बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता। तो आ सी बहुलक वर्ग, इस तो पिछला वर्ग आ वाला आ गया, ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆ 52, ਇਹ ਬਣੀ F0। फिर F2 बहुलक वर्ग तो अगले की। तो बहुलक वर्ग तो अगले की बारंबारता सिर्फ 100 वाले की बारंबारता 38 है, ये F2। तो ये वैल्यूज एक बार फिर रिपीट करता। F1 बहुलक वर्ग की अपनी, F0 1 तो पिछे 0 आंदा। तो बहुलक वर्ग तो पिछले दी F0, बहुलक वर्ग तो अगले दी F2। तो F1 60 आया, F0 52 आया, F2 38 आया। ठीक है। फिर रह गया H। तो H तुसीं ये देखना कि जिन्ने भी ग्रुप दिते हुए ने इन्हां दे विच फर्क किन्ने किन्ने दा है। सारे च मैं पहले तय करना कि सारे च फर्क इक्को जिहा दित्ता होना चाहिए। तो 0 तो 20 दे विच फर्क, 0 दे विच ते 20 दे विच 20 दा फर्क है, 20 ते 40 दे विच फर्क, 20 ते 20 40 हुंदे, 40 ते 20 60 हुंदे, 60 ते 20 80 हुंदे, 80 ते 20 100 हुंदे, 100 ते 20 120 हुंदे। इट मीन सारे दे फर्क किन्ने किन्ने दा दित्ता होया 20 दा फर्क दित्ता। तो आ 20 दा फर्क नहीं दित्ता H दी वैल्यू। ठीक है। तो बहुलक वर्ग पहचान लेना। बहुलक वर्ग किस तरह पहचानना, जिस ग्रुप की बारंबारता सब तो ज़्यादा, तो यदि बारंबारता सब तो ज़्यादा सी ये बहुलक वर्ग आ गया। फिर F1 बहुलक वर्ग की अपनी बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग तो पिछले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग तो अगले की बारंबारता। तो H किस तरह पता किया, जिन्ने भी वर्ग अंतराल दिते हैं, जिन्ने भी ग्रुप दिते हैं, जिन्ने भी क्लास इंटरवल्स दिते हैं, इन्हों का साइज देखना होंगे। साइज देखने का मतलब है कि इन्होंने फर्क किन्ने किन्ने का है, जिन्ने जिन्ने का फर्क होएगा वो H की वैल्यू है। ठीक है। सो ये सीगा आपां बहुलक वर्ग पहचान के आ सारियां वैल्यूज जिहड़ियां सानूं चाहीदियां सीगियां ये लिखियां। हुण आपां फार्मूले दे विच वैल्यूज पुट करते हैं, आपां आंसर सॉल्व करते हैं।
हाँ जी, हम फार्मूला लगाइए। तो बहुलक मॉड वो फार्मूला लिख दिता L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतने हम सारी वैल्यूज पुट करना। तो L की वैल्यू 60 प्लस आ वैल्यू सारी ब्रैकेट पुट करनी। F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 52 बटा 2F1 2 गुणा F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38। तो ब्रैकेट बंद करके गुणा H की वैल्यू 20। तो सॉल्व करते बस ये कैलकुलेशन का ही मेन काम है। 60 प्लस 61 के विचों 52 घटाए 9 2 पहला 61 का गुणा करना। ख्याल रखना जिथे गुणा हुई पहला हुई वो सॉल्व होना। 61 में 2 गुणा किया 2 एकम 2 2 छिके 12 122 माइनस 52 माइनस 38 गुणा 20। सो 60 प्लस 9 बटा तो 122 चो पहला 52 घटाओ फिर वो 38 घटाओ 122 के 52 घटाए 0 12 5 कटे 7। तो 122 के 52 घटा के कितना आया 70 फिर वो कितने घटाने 38 32 है फिर गुणा 20। ठीक है। तो ऊपर थले जो कुछ कट्टा जाता हो तो कट दिया करना ताकि कैलकुलेशन थोड़िया सौखिया हो जाए। 2 के पार्ट कट्टे जाने 16 गुना 32 ते 10 गुना 20 फिर 2 के कट्टे जाने 2 8 16 2 5 10। तो वो देखो की बच गया थे ये बराबर आ गया 60 प्लस 9 गुणा 5 बटा 8 दैट इज 60 प्लस 45 बटा। ठीक है। तो इनू हम आप सॉल्व करके अपना आंसर करना। तो इतना तक आप कर लिया 60 प्लस 45 बटा 8। कैलकुलेशन करने के लिए मैं इनू घटा देना इसकी जरूरत नहीं है हम सानू। तो वो चीज़ इतने दोबारा लिखता इसे मैं इतने दोबारा लिखा लगा 60 प्लस 45 बटा 8। तो इनू सॉल्व कर 45 के 8 कट्टिया नहीं जाता। तो तुम सौखा तरीका की है कि 45 को 8 नाल डिवाइड करके इनू पॉइंटा के लिख लो फिर वो 60 जोड़ देने। तो इनू हम सॉल्व करते हैं 60 प्लस 45 बटा 8 45 8 के नाल डिवाइड नहीं होता इनू तुम पॉइंटा बदलना सौखा तरीका यही है। तो 45 को 8 नाल डिवाइड कर दो 8 पौना 40 इतने बच गया 5। हम ऊपर कोई संख्या नहीं उतारने वाली बची इतने पॉइंट लगाना एक 0 उतार लेना। 8 का पड़ा 50 तो नहीं बदल देना 8 6 48 50 का 48 घटा के बच गया 2 फिर एक 0 उतारो 8 दूनी 16 20 16 कटे 4 फिर एक 0 उतारो 8 5 40 40 40 घटा के कितना बच गया इतने 0 बच गया। ठीक है। मीन 45 को 8 नाल डिवाइड करके कितना आया 5.625 60 प्लस 5.625। तो 60 के 5.625 किस तरह जोड़ना बच्चे इतने भी कई बार गलती कर देते हैं। वो गलती किस तरह करते हैं कि 60 के पॉइंट है नहीं पर 5.625 पॉइंट है। तो इन्होंने दोनों को किस तरह ऐड किया जाता एक बार रिवाइज कर देना। तो 60 प्लस 5.625 ये पॉइंट है नहीं तो तुम की करना ये पॉइंट अपने को लगाना लास्ट पॉइंट तो बाद 0 उतार लिया किनिया 0 उतारनिया वो तुम दूसरी संख्या वाल देखो कि वो पॉइंट तो बाद किन्ने अंक है। तो ये पॉइंट तो बाद 3 अंक है तो तुम 3 0 उतार लो। हम 5.625 ये थले लिख दो पॉइंट के थले पॉइंट लिख के पॉइंट तो पहला 5 पॉइंट के सज्जे पासे 6 6 तो बाद 2 2 तो बाद 5 तो इनू जोड़ दो। तो
ਇਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 5 2 6 5 ਤੇ 6 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 65.625 ਸੋ 65.625 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 14.2 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।